لیکن آؤ دیکھو حضرت عمر فاروق اعظم اپنی بہن کے دروازے پر پہنچے ہیں. بہن کے دروازے پر جیسے ہی پہنچے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر, کان لگائے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے, خدا کے کلام کی تلاوت کی جا رہی ہے, اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. آپ نے دروازہ کھولا, دروازہ کھلنے کے بعد دیکھا تھا کہ آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی ہیں, آپ کے بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بڑا ظلم کیا حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی بہن پر, بڑی پٹائی کی اپنی بہن کے اپنے بہنوئی کی, اور کہا تھا کہ نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. اس وقت میں حضرات محترم حضرت عمر خطاب, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا تھا کہ اے بھائی, جس باپ کی تو اولاد ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہوں, جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہوں. اگر تو مجھے پٹائی کرتے کرتے میرے جسم کا خون کا قطرہ قطرہ بہا دے گا, حتیٰ یہ کہ اگر میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دے گا, ہر بوٹی سے یہی آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرات محترم, اسے کہتے ہیں ایمان, اسے کہتے ہیں ناموس رسالت کی حفاظت کرنا. اللہ اکبر. قربان جائیے مسلمانوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرات محترم دیکھیے وہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں, اپنی بہن کے ساتھ چلے ہیں نبی کی بارگاہ میں, اپنے بہنوئی کے ساتھ چلے ہیں نبی کی بارگاہ میں. میرے نبی کے جلووں, میرے نبی کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھا, میرے نبی کے اخلاق و کردار کو دیکھا, میرے نبی کے گیسووں پر نظر پڑی حضرت عمر کی. قدم سرکار میں گر کر کہنے لگے تھے یا رسول اللہ, آیا تو قتل کے ارادے سے آیا تھا, لیکن آقا آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھا ہے, آقا آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھا, آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھا, آقا میں آپ کے اوپر شیدا ہو چکا ہوں. اے آقا میری غلطیوں کو معاف فرما کر کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل فرما لیجئے. اللہ اکبر. حضرات محترم دیکھیے تو صحیح, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے, مذہب اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اب داخلہ لینے کے بعد میں عمر فاروق اعظم نے کہا تھا اے اللہ کے نبی, اب چوری سے نماز نہیں پڑھی جائے گی, اب کھلم کھلا نماز پڑھی جائے گی. اللہ اکبر. حضرات محترم دیکھیے تو صحیح, یہی عمر بن خطاب ہیں, اب جو کہ حضرات محترم نبی کا قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. اب جب مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں تو کفار ان سے ڈر رہے ہیں, کفار و مشرکین ان سے تھر تھرا رہے ہیں, اس لیے کہ یہ وہ عمر ہے اللہ اکبر اب نبی کے عاشق ہو چکے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, چل رہے ہیں حضرات محترم مکہ کی گلیوں میں. لیکن جیسے ہی مکہ کی گلی میں پہنچے, بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کیسا کیسا دور آیا ہے. آج ہماری زبانیں روک دی جاتی ہیں, آج اگر ناموس رسالت کی بات آئے تو ہم بول نہیں سکتے. اللہ اکبر. قربان جائیے مسلمانوں, بتاتا ہوں کہ دیکھیے کتنے ظلم مسلمانوں پر ہوئے ہیں اور کیسا کیسا دور مسلمانوں کے اوپر آیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب جیسے ہی تلوار لے کر چل رہے تھے, راستے میں نظر پڑی ایک خاتون تھی, نبی کی ایک عاشقہ تھی, نبی کی ایک خادمہ تھی, نبی کی غلام تھی, جن کا نام حضرت زنیرہ تھا. اللہ اکبر. حضرات محترم حضرت زنیرہ کی نظر پڑی حضرت عمر فاروق اعظم پر. دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم تبلیغ اسلام کر رہے ہیں. جب یہ دیکھنے کے بعد حضرت زنیرہ نے کہا تھا اے اللہ, اے عمر فاروق اعظم, آج تمہیں کیسا لگ رہا ہے کہ جب تم اللہ کے رسول کے عاشق بن گئے ہو؟ اے عمر بتاؤ تو صحیح تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اے عمر یاد کرو وہ وقت بھی جب میں ایک یہودی کی غلام تھی, ایک یہودی کے یہاں پر میں غلام تھی, اس وقت یہودی میرے اوپر کوڑے برسا رہا تھا. اے عمر جب وہ یہودی میرے اوپر کوڑے برسا رہا تھا, ہر کوڑے پر میری کھال ادھڑ کر آ رہی تھی. اس وقت جب تم آئے تھے, اس وقت تم نے مجھ سے کہا, تم سے میرے اس آقا نے کہا تھا, اس یہودی نے کہا تھا اے عمر میں تھک گیا ہوں, لو اس میری خادمہ پر, میری اس غلام پر, میری اس لونڈی پر جو ہے کوڑے برساؤ. اے عمر تم نے کوڑے مارتے میرے جسم کی کھال ادھیڑ دی تھی. اے عمر یاد کرو وہ زمانہ کہ جب تم مارتے تھک گئے تھے, اور تھکنے کے بعد جب تم پانی پینا تم نے شروع کیا تھا. اے عمر یاد کرو اس وقت کو جب تم پانی پی رہے تھے, میں نے کہا تھا عمر تھک گئے ہو کیا؟ تم نے کہا تھا تھکا نہیں ہوں, پانی پی رہا ہوں, میں ابھی تجھ پر اور کوڑے برساؤں گا. اللہ اکبر. یہ حضرت زنیرہ وہ زنیرہ ہیں, قسم خدا کی انہوں نے اپنی آنکھیں تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی خاطر اپنی آنکھوں کو قربان کر دیا تھا. قربان جائیے یہی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. حضرات محترم ایک دن یہ اپنے آقا کے گھر سے نکل کر راستے میں چل رہی تھی, سامنے سے ابو جہل آیا. جیسے ہی ابو جہل آیا, ابو جہل کی نگاہ پڑی حضرت زنیرہ پر, لیکن حضرت زنیرہ کی زبان پر نبی تھا. اب جیسے ہی نبی پڑھتی چلی جا رہی, کلمہ پڑھتی چلی جا رہی ہے. اب جیسے ہی قریب آیا ہے ابو جہل, جیسے ہی قریب آیا تو آپ نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا. دیکھیے اسے کہتے ہیں عشق, اسے کہتے ہیں ایمان. حضرات سامنے سے سب سے بڑا دشمن آ رہا تھا, مذہب اسلام کا سب سے بڑا دشمن سامنے سے آ رہا ہے, لیکن جیسے ہی قریب پہنچی بلند آواز سے کلمہ طیب پڑھنا شروع کیا, بلند آواز سے نبی کہنا شروع کیا. اللہ اکبر. حضرات محترم جیسے ہی ابو جہل کے کانوں میں یہ
आवाज पहुंची। उसने बड़ी तेज आवाज से कहा था और बड़े कड़क कर कहा था, ए ज़ुनैरा किसका नाम ले रही है? अल्लाह अकबर। उसका मकसद ये था कि जब मैं तेज आवाज से इससे बोलूंगा, इससे मैं डराऊंगा धमकाऊंगा, तो ये नबी का नाम लेना छोड़ देगी, डर जाएगी, क्योंकि ये गुलाम है। अल्लाह अकबर। जब उसने तेज आवाज से कहा था, उस वक्त हजरत ज़ुनैरा ने कहा था, ए अबू जहल, मैं अपने नबी का नाम ले रही हूँ, मेरी ज़बान पर नबी नबी है, मैं अपने नबी का कलमा पढ़ रही हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जैसे ही कलमा पढ़ा गया है, कसम खुदा की हज़रात मोहतरम, हज़रत ज़ुनैरा पढ़ती चली जा रही है कलमा। इसने उसके आका को बुलाया और उस यहूदी को बुलाने के बाद कहा था, ए यहूदी, तेरी खादिमा ने, तेरी गुलाम ने मेरी बेइज्जती की है, इसका बदला लेना चाहता हूँ। उसने कोड़े बरसाने शुरू किए। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम कहा था, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, नबी का नाम लेना छोड़ दे। हज़रत ज़ुनैरा कलमा पढ़ती चली जा रही है। मुझे बताओ, इतना जुल्मात किसी पर हो रहा हो तो, मुझे बताओ किसी पर कोड़े बरसाए जा रहे हो तो, मुझे बताओ किसी को घर से निकाला जा रहा हो तो, मुझे बताओ किसी की आंखें फोड़ी जा रही हो तो, अरे तुम तो अच्छे से अच्छी ग़िज़ाएं खाते हो, तुम तो अच्छे से अच्छे एयर कंडीशन कमरों में रह रहे हो, तुम तो अच्छे से अच्छे बिस्तरों पर सो रहे हो, तुम तो अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएं खा करने के बाद में अगर नामूस रिसालत की बात आए तो तुम कहते हो खामोश बैठ जाओ, तुम कहते हो माहौल बहुत खराब है, तुम कहते हो माहौल बड़ा खराब है। मैं कहता हूँ उससे बड़ा खराब माहौल क्या होगा जब हज़रत ज़ुनैरा पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। मैं कहता हूँ उस वक्त से ज्यादा जुल्म कब हुआ होगा जब हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चमड़ी उधेड़ी गई थी। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम यहीं तक महदूद नहीं, वो यहूदी अपने हाथों में सरिये गरम कर लेकर आया और सरिये गरम लाने के बाद में उसने दहका कर हज़रत ज़ुनैरा की आंख के सामने किया था और करने के बाद कहा था, ज़ुनैरा बता, आज नबी का कलमा पढ़ना छोड़ती है कि नहीं? अगर नबी का कलमा पढ़ना ना छोड़ा तो तेरी आंख फोड़ दी जाएगी। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ुनैरा ने उस वक्त कहा था, ए अबू जहल यहूदी, अगर तू मेरी आंख फोड़ देगा तब भी मेरे जिस्म का हर कतरा यही कहता हुआ नजर आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे कहते हैं ईमान, इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं नामूस रिसालत की हिफाजत। अल्लाह अकबर। मैं किसी मर्द की बात नहीं बता रहा, मैं सिर्फ एक खातून की बात बता रहा हूँ, एक औरत की बात बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर। वो सरिया गरम जैसे ही हज़रत ज़ुनैरा की आंख में लगाया था, कसम खुदा की हज़रात मोहतरम, जैसे ही आंख में लगा आंख के अंदर धुआं उठने लगा, खून का फव्वारा जारी हो गया, खून निकलने लगा था। अल्लाह अकबर। आंख जल चुकी थी। अब जैसे ही आंख जली है, अल्लाह अकबर, कहा गया था, ए ज़ुनैरा बता, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ेगी कि ना छोड़ेगी? इतना सुना था हज़रत ज़ुनैरा कहती हैं, ए यहूदियों सुन लो, ए काफिरों सुन लो, कुफ्फार मुशरिकीन सुन लो, ये आंख क्या है? अगर तुम मेरी जान भी ले लोगे तब भी मेरी ज़बान से कलमा तैयबा बंद नहीं हो सकता। मेरी ज़बान से जब भी निकलेगा कलमा तैयबा निकलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे ईमान कहा जाता है। हज़रात मोहतरम, जब आपके ये जज्बा देखा था और जज्बा देखने के बाद ना उन जालिमों ने फिर हज़रात मोहतरम वो सरिया दूसरा उठाया, गरम करने के बाद वो दूसरी आंख में भी लगा दिया, दूसरी आंख भी आपकी हज़रात मोहतरम आपकी बीनाई खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। आंख जल जाती है। कुर्बान जाइए हज़रत ज़ुनैरा पर आपके हाथ बांध दिए गए और पीठ पे पीछे हाथ बांधने के बाद में पैरों को बांध कर एक मक्के के चौराहे पर डाल दिया गया और चौराहे पर डालने के बाद कहा था, ताना दिया था हज़रत ज़ुनैरा को और कहा गया था, ज़ुनैरा हमने तेरी आंखें फोड़ दी हैं, जिस नबी का तू कलमा पढ़ती है उस नबी से अपनी आंखें वापस ले ले, जिस नबी पर तू भरोसा करती है उस नबी से अपनी आंखें वापस ले ले, जिस खुदा की तू इबादत करती है उस खुदा से अपनी आंखें वापस ले ले। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, हज़रत ज़ुनैरा को डाल दिया गया एक चौराहे पर और जैसे ही ये गए हैं हज़रत ज़ुनैरा की ज़बान खुली है, रब की बारगाह में अर्ज करने लगी है। हज़रत ज़ुनैरा कह रही थी, रोकर अर्ज कर रही थी, परवरदिगार मेरे ऊपर कोड़े बरसाए गए तब मैंने तुझसे कोई शिकवा ना किया, मेरी खाल उधेड़ी गई तब मैंने तेरी बारगाह में कोई गिला ना किया, मेरी चमड़ी उधेड़ी गई, रातों दिन मुझ पर कोड़े बरसाए जा रहे थे तब मैंने कोई अफसोस ना किया, परवरदिगार तेरी बारगाह में कोई शिकवा ना किया, कभी तुझसे ये नहीं प्रकार किया, परवरदिगार मेरे ऊपर जो जुल्म होता है से दूर फरमा दे, परवरदिगार मैं कोड़े खाती रही तेरे हबीब की मोहब्बत में, परवरदिगार मैं अपनी खाल को धड़वाती रही तेरे हबीब की मोहब्बत में, लेकिन परवरदिगार आज मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मेरी आंखें फूट चुकी है, मुझे आंखें फूटने का गम नहीं है, परवरदिगार तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत की बात आ गई है, तेरे नबी की अजमत की बात आ गई है, उन्होंने आंखें फोड़ने के बाद कहा है आंखें हमने ले ली हैं, अगर जिस नबी का कलमा पढ़ती है उस नबी से आंखें वापस ले ले,
परवरदिगार मेरे इस हाल को मेरे महबूब पर जाहिर फरमा दे। अल्लाह अकबर। हजरत सुनैरा अपनी अपनी ज़बान खोल ही रही थी, रब की बारगाह में अर्ज कर ही रही थी। इतने में क्या देखती है कि मुस्तफ़ा की अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। अब जैसे ही नबूवत की खुशबू हजरत सुनैरा ने सूंघी थी, हज़रात मोहतरम मचल गई। अपने तमाम तर तकलीफों को बर्दाश्त, तकलीफों को हज़रात मोहतरम भूल गई थी। और हज़रात मोहतरम जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा करीब आए, मेरे नबी ने फरमाया सुनैरा कैसी हालत है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना था ना कि नबी की आवाज़ सुनी, नबी के जुमले सुने, नबी ने फरमाया कैसी हालत है। हज़रत सुनैरा मुस्कुरा जाती है, अपनी तमाम तर तकलीफों को भूल कर मुस्कुराती और मुस्कुरा कर अर्ज करती है अल्लाह के नबी आपने पूछ लिया है तो हाल अच्छा ही हो गया है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐ सुनैरा कि आंखें चली जा गई हैं इसलिए रो रही हो। अर्ज करती है अल्लाह के नबी इसलिए नहीं रो रही कि आंखें चली गई, बल्कि इसलिए रो रही हूँ अफसोस इस बात का है कि अब जिंदगी भर में तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकूंगी। अल्लाह के नबी मेरी दिल की तमन्ना ये थी कि जब मैं दुनिया से जाऊं मलकुल मौत आए मेरी रूह निकाले, उस वक्त आपका चेहरा मेरे सामने हो, मैं इसलिए आंसू बहा रही हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सुनैरा की आंखों में अपना लुआब दहन डाला था और लुआब दहन लगाने के बाद में कहा था, जैसे ही लगाया आंख रोशन हो जाती है, दोनों आंखों में लगाने के बाद आंखें रोशन हो जाती है। हज़रत सुनैरा से पूछा सुनैरा बताओ कैसा महसूस करती हो। हज़रत सुनैरा अर्ज करती है अल्लाह के नबी इससे पहले आंखें फूटने से पहले जो रोशनी थी ऐसी उससे कई गुना आज इस वक्त रोशनी आ चुकी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं ए सुनैरा अपने मालिक से जाकर कह देना अगर तू आंखें लेनी जानता है तो मेरा मुस्तफ़ा आंखें देनी जानता। ए सुनैरा जाकर कह देना अगर तू आंखें लेनी जानता है तो हमारा हबीब आंखें देनी जानता है। मेरे मुस्तफ़ा ने मेरी आंखें वापस लौटा दी हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत मोहतरम हज़रत सुनैरा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज करती हैं ए उमर क्या तुम्हें याद है वो वक्त जब तुमने मेरे ऊपर कोड़े बरसाए थे, उस वक्त में और आज में तुम्हें क्या फर्क दिखाई दिया, क्या महसूस कर रहे हो। तो हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए थे और हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी आंखों में आंसू भर कर कहा था सुनैरा उस वक्त मैंने नबी के चेहरे को न देखा था, उस वक्त मैंने नबी के कलिमात को ना सुना था, उस वक्त मैंने नबी के कलाम को ना सुना था, उस वक्त मैंने नबी के चेहरे को ना देखा और आज मैं नबी के चेहरे को देख कर आया हूँ। ऐ सुनैरा मैं नबी के चेहरे को देख कर आया हूँ। गोया कि हजरत उमर फारूक आजम हजरत सुनैरा से कह रहे थे जब तक बिके न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है जो कुछ बयान करने में गलतियां खामियां हुई परवरदिगार इसको माफ फरमाए। आमीन।